Hello students, let me introduce myself. I am Mrs. Vandana Gamne Awad from Hindi Madhyamik Vidyalay, which is run by KVN Naik Education Society, Nasik. Hello everybody. Today we are going to learn and understand the first poem of our syllabus, A Teenager's Prayer. The poet of the poem is J. Morse. Teenage is a stage which begins at the age of 13 and it ends at the age of 20th. We also call this stage as an adolescent stage because at this stage there are so many changes occurs in our body which reflects our action. We started feeling that we are not a younger person who can be guided by elder person all the time. You feel the freedom you wanted to feel the freedom of your decisions. So this is the state of each and every teenager, and this is the universal state of mind of every teenager, and this is very beautifully expressed by J. Morse in this given poem, A Teenager's Prayer. So children, let's first read the poem for total understanding. Okay, just listen the poem first. A Teenager's Prayer by J. Morse. Each day brings new beginnings. Decision I must make. I am the only one to choose the road that I will take. I can choose to take the road of life that leads to great success, or travel down the darkened road that leads to great distress. Please open my eyes, dear Lord, that I might clearly see. Help me stand for what is right. Bring out the best in me. Help, Lord, to say no when temptation comes my way, that might keep my body clean and fit for life each day. When my teenage years are over, I know that I will see that life is lived its very best with walking next to me. Very beautiful poem by J. Morse. I hope you must have understood the whole poem, because when we read the poem as a whole, we get the total meaning easily. But let's understand the poem by stanza. Just concentrate on the first stanza. First stanza is, each day brings new beginnings. Decision I must make. I am the only one to choose the road that I will take. Dear student, at this stage, you started feeling freedom of your life. And you feel that there are so many paths, there are so many different roads in your life, and you have to choose only one from it. And it is only you who is responsible for that decision, whether it is good or whether it is bad. So whatever the new beginning every day is coming to your way, you have to choose from that which road is good for you and which road is bad for you. It is only you who is solely responsible for that decision. Decision समझते हो ना, निर्णय. इसको मैं शॉर्ट में समझाना चाहूँगी आपको कि हर दिन आप 10वीं में हो, एडोलेसेंट स्टेज से जा रहे हैं, टीनेज हो आप, तो आपको हर चीज़ नई दिखाई देने लगेगी और बहुत सारे रास्ते दिखाई देंगे. लगेगा मैं ये चुनूं या वो चुनूं. डिसीजन आपको ही लेना है, रास्ता कौन सा चुनना है उस चीज़ का. जो रास्ता आप चुनेंगे वो रास्ता आपको कहाँ लेके जाने वाला है, आपके अच्छे करियर की तरफ, एक अच्छे इंसान बनने की तरफ आपको लेके जाने वाला है. सो यू आर द सोल रिस्पॉन्सिबल यू ऑफ योर decision, and that's why the poet says that I am the only one to choose the road that I will take, and decision I must have to make. In the second stanza, the poet says, just first read the second stanza, I can choose to take the road of life that leads to great success, or travel down the darkened road that leads to great distress.
we have already seen that there are so many roads in our life, so many paths in our life, but we have to choose only one which suits you. But basically, there are two types of roads. The first road will take you to the success, and another road will take you to the distress or failure. So, from these two roads, you have to choose only one road. The first road, it will take you up to the success, but another road will take you to the darkened place of the life, which is failure. So you have to choose from these two routes. Choice is yours, decisions will be yours. So you are totally responsible for your decision. सेकंड स्टैंजा में कवि ने बहुत सुंदरता से बताने की कोशिश की है कि ज़िंदगी सिर्फ दो चीज़ों का नाम है, एक तो सक्सेस और दूसरा फेल्यूर, अपयश जिसे हम कहते हैं। ज़िंदगी में हमें क्या प्राप्त करना है वो हमारे ही हाथ में। ऐसा रास्ता चुनो कि जिससे आप सक्सेस की तरफ जाएंगे। अगर गलती से भी आपसे कोई गलती हो गई, जो अच्छा दिख रहा है उसकी तरफ आप निकल गए और वो रास्ता अगर आपको अंधेरे की तरफ लेके गया, तो आप ज़िंदगी में क्या मिलने वाला है, आपको फेल्यूर यानी अपयश मिलने वाला है। तो इसलिए दो रास्तों के बीच में से बहुत अच्छा रास्ता जो है आपके लिए, वो चुनने का काम सिर्फ किसको करना है, आपको ही करना है। आपका दिल जो चाहेगा, आपका मन जो चाहेगा, वो आप करने जा रहे हैं। इन द थर्ड स्टैंजा, what the poet said, just come to the point. Please open my eyes, dear Lord, that I might clearly see. Help me stand for what is right. Bring out the best in me. In the third stanza, we have already seen that the poet or you have to choose the correct road of your life. And now you are confused. There are so many people who are going to give you advice, but you are not ready to listen the advice from anyone else. So you are confused. You have to choose the road which will take you to the success, but still you are confused because everything looks very shiny, bright. You couldn't understand which road will take you to the success. So when you are confused, you are talking to the God. The poet is talking to the God. Here the poet expresses the importance of the prayer here. The poet says that, "Oh God, please open my eyes, dear Lord, that I might clearly see. Everything looks very beautiful, but still I have to choose the one thing which will take me to the success. So God, to choose that beautiful things, good things, open my eyes so that I will see clearly what is good for me and what is bad for me. At the same time, there are so many good things in me. Oh God, help me to bring them out so that I will choose the correct road of my life. I will choose the correct career." इस प्रकार से थर्ड स्टैंजा में कवि ने प्रार्थना का महत्व बहुत अच्छी तरीके से बताया है। प्रार्थना वो नहीं होती है जो हम सिर्फ किसी मूर्त के सामने जाकर बैठे। वो प्रार्थना वो चीज़ होती है, वो दिल से आप जो चाहते हो, शांत मन करके जो चाहते हो आपको मिल सकता है। जब आप कंफ्यूज हो जाते हो तो आप भगवान के सामने बैठ जाते हो और भगवान से प्रार्थना करते हो कि मुझे रास्ता दिखाओ, अच्छा मेरे लिए अच्छा क्या है, बुरा क्या है, क्योंकि अभी तो सब कुछ अच्छा चकाचौंध दिख रहा है, उनमें से अच्छा कौन सा है वो देखने की क्षमता मुझ में लाओ भगवान, ताकि मेरे अंदर जो भी अच्छाइयाँ हैं वो अच्छाइयाँ मैं देख सकूं और उसके द्वारा मैं ज़िंदगी का अच्छा निर्णय, अच्छा डिसीजन ले सकूं। और उसके लिए भगवान मुझे आपके मदद की, आपकी सहायता की ज़रूरत है। In the next stanza, the poet says that, "Help Lord to say no when temptation comes my way, that might keep my body clean and fit for life each day." Again, here in this stanza also, the poet is totally depending on the God. Why? Because there are so many temptations all around him. He is at the adolescent stage or teenage stage. Everything looks very attractive. Temptation means attractions. Everything looks very attractive.
attractions. At this stage there are attractions of smoking, drinking. Everyone tries to tell you just take a one sip and you will understand the zing of life. So these are the temptation where the poet can make a mistake of his life, and that's why the poet is requesting God or praying to God, oh God, if you will be with me, I can take a strong decision to say no to all these temptations. I want to say no to all these temptations because I want to live a very happy, healthy, and beautiful future life. If I will say no to all these temptations, I will become a very healthy person, a very clean person, and very healthy and fit body I want to keep for my future. So God, each day I want to fit for my future. So, oh God, please help me to say no to this temptation. I want to be I want to live a very healthy and beautiful life. चौथे स्टांजा में कवि ने बहुत ही सुंदर तरीके से अपने इस उम्र की जो भी गलतियां आने की संभावना है उससे भगवान किस प्रकार से मदद कर सकता है, या फिर आपका अंतरात्मा आपको किस प्रकार से मदद कर सकता है, वो बताने की कोशिश की है। इस उम्र में, इस स्टेज पर बहुत सारी गलतियां होने की संभावना होती है, क्योंकि हर छोटी छोटी चीज़ है वो दिखने में बहुत सुंदर दिखती है। ऐसे लगता है कि वो मुझे मिलनी चाहिए, वो मैंने करके देखूँ, ये करके देखूँ, वो करके देखूँ। लेकिन अगर वो करके देखने के मूड में आपसे गलती हो जाए तो ज़िंदगी भर के लिए आप हमेशा के लिए क्या होने वाले हो, आप अपयश आपके कदमों में गिरने वाला है। तो पोएट जो है वो भगवान से प्रार्थना करता है कि ऐसे सारी जो भी आकर्षण है, इन आकर्षणों से दूर रहने की क्षमता भगवान मुझ में डाल दूँ, ताकि मैं इन सब चीज़ों को ना कह सकूँ, क्योंकि मुझे अपनी शरीर को बहुत ही फिट रखना है, बहुत अच्छा रखना है, क्योंकि मुझे आगे आने वाली ज़िंदगी है जो एक अच्छी ज़िंदगी जीनी है। तो अच्छी ज़िंदगी जीने के लिए मैं इन आकर्षणों को कैसे ना कर सकूं, उसके लिए मुझे किसकी ज़रूरत है भगवान? आपके ब्लेसिंग्स की, आपकी मुझे ज़रूरत है। और बहुत ही सुंदर तरीके से कवि ने अपना भरोसा जो है वो भगवान पर, अपने अंदर के विश्वास पर रखने की कोशिश इस स्टांजा द्वारा की है। नेक्स्ट स्टांजा एंड द लास्ट स्टांजा। व्हेन माय टीनेज ईयर्स आर ओवर, आई नो दैट आई विल सी दैट लाइफ इज लिव्ड इट्स वेरी बेस्ट विथ यू वॉकिंग नेक्स्ट टू मी। द लास्ट स्टांजा में पोएट इज वेरी कॉन्फिडेंट that when this teenage stage will be completed, this will be over, I shall lead a very, very happy and successful life, because I shall say I will live a very, very happy life. When my teenage will be over, I will become the most successful person in my life, because I will not become a slave of these temptations, and I want to live a very beautiful life. I shall become the most successful person in my life. But how it becomes possible? It becomes possible just because of you, God. God is always with me. He's always walking next to me, and that's why I becomes the successful person in my life. I becomes the most good human being in my life just because of God. लास्ट स्टांजा में कवि जो है वो बहुत ही कॉन्फिडेंट है कि अगर भगवान मेरे साथ है तो मैं हर चीज़ पा सकता हूँ। जब ये मेरी ये जो टीनेज स्टेज है वो जब जैसे ही ख़त्म हो जाएगी तो मैं एक अच्छा सा सक्सेसफुल इंसान बन जाऊँगा। और ये सक्सेसफुल इंसान जो है वो किसकी वजह से होगा सक्सेसफुल? क्योंकि भगवान हमेशा के लिए उसके साथ ही चलने वाले हैं। उसको जब भी गलती होगी उसकी, तो उसको गाइड करने के लिए उसके साथ भगवान होने वाले हैं। तो इसकी वजह से वो भगवान पर अपना जो विश्वास है वो कायम रखते हुए कहता है कि गॉड, यू आर ऑलवेज विथ मी
वॉकिंग नेक्स्ट टू मी, मेरे साथ हमेशा आप चल रहे हो, इसकी वजह से मैं ज़िंदगी में एक सक्सेसफुल इंसान बन चुका हूँ। लास्ट में पोएम में बहुत ही सुंदर तरीके से प्रेयर यानी प्रार्थना का महत्व बताया है। प्रार्थना वो नहीं होती है कि जो हम लोग सिर्फ मूर्ति के सामने बैठकर कुछ चाहेंगे, लेकिन ये चाहना क्या होता है, वो चाहना हमारे अंदर के अंतर मन से होता है। हम जो चाहते हैं अच्छी चीज़ें मांगेंगे, अच्छी चीज़ की प्रार्थना करेंगे तो अच्छा हमारे साथ होता जाता है। हम गलत चीज़ों के गुलाम नहीं बन सकते। तो इसके लिए आखिरी स्टांजा में कवि ने बहुत ही सुंदर तरीके से प्रार्थना का महत्व विशद करने की कोशिश की है। तो बच्चों, हम लोगों ने इस प्रकार से सारी कविता समझने की कोशिश की है। अब इस कविता पे सबसे महत्वपूर्ण चीज़ जो है वो आती है पोएटिक एप्रिसिएशन के लिए, मतलब समीक्षण के लिए। तो इस पोएम में आपको सबसे पहले क्या करना है कि जब भी आप पढ़ाई करने के लिए, अब ये सुनने के बाद आप किताब सामने लो, कविता जो भी है, जो पोएम है, आप शांत मन से लाइन टू लाइन पढ़ो। पहले उसमें से जो भी डिफ़िकल्ट वर्ड्स आपको लगते हैं, आई होप कि मैंने वो सब कुछ एक्सप्लेन करने की कोशिश की है। लाइन टू लाइन नहीं किया, फिर भी सब कुछ एक्सप्लेन किया है। 2-3 ही डिफ़िकल्ट वर्ड्स है, जैसे डिसीजन, टेम्पटेशन, डार्कंड, इस प्रकार से 2-3 डिफ़िकल्ट वर्ड्स हैं। तो डिसीजन का मतलब है निर्णय, आपका जो भी रेजोल्यूशन होता है, डिसीजन कहते हैं उसको। डार्कन मतलब अंधेरा रोड, और लास्टली जो वर्ड टेम्पटेशन आया, दैट इज़ कॉल्ड अट्रैक्शंस, जो भी आकर्षण है उसको टेम्पटेशन का। तो इसके अलावा भी अगर आपके सामने कुछ डिफ़िकल्ट वर्ड्स आपको दिखाई दे रहे हैं तो आप डिक्शनरी में से उसे देखिए, उसका मीनिंग अच्छी तरीके से लिख लीजिए और शांत मन से फिर से एक बार कविता पढ़िए। एक बार कविता पढ़ने के बाद छोटे छोटे सवाल बनाने की कोशिश कीजिए। जैसे फर्स्ट लाइन पे मैं सवाल बना के दिखाती हूँ आपको, उस प्रकार से बनाने की कोशिश कीजिए। फर्स्ट लाइन क्या है, ईच डे ब्रिंग्स न्यू बिगिनिंग्स। अब सिंपल से क्वेश्चन कीजिए, व्हाट डज ईच डे ब्रिंग्स, जवाब मिल जाएगा, न्यू बिगिनिंग्स। तो इस प्रकार से अगर आप हर सवाल बनाते बनाते एंड तक आएंगे तो आपको पूरी पोएम और अच्छी तरीके से समझ में आएगी, क्योंकि आप हर लाइन पर अच्छी तरह से कंसंट्रेट करके जाएंगे तो पोएम समझ में आपके आएगी। लेकिन जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन जो है अपने परीक्षा के हिसाब से वो होता है पोएटिक एप्रिसिएशन का। तो पोएटिक एप्रिसिएशन 5 मार्क्स के लिए आने वाला है। आपको स्टेप बाय स्टेप किस प्रकार से होगा, तो फर्स्ट तो आपको लिखना है नेम ऑफ द पोएम। तो पोएम का नाम क्या है, अ टीनेजर्स प्रेयर। सेकंड, नेम ऑफ द पोएट, पोएट का नाम क्या है, जे मोर्स। इन दोनों को आपको कितने मार्क्स मिलने वाले, आधा आधा 1 मार्क मिलने वाला। थर्ड क्वेश्चन आता है आपका राइमिंग स्कीम। ये राइमिंग वर्ड्स नहीं आपको लिखने हैं, आपको राइमिंग स्कीम लिखने, जो हमने एक्चुअली 9वीं में सीखा है। लेकिन फिर से एक बार बताना चाहूँगी कि आप फर्स्ट स्टैंजा सामने लीजिए, आपको फर्स्ट स्टैंजा में ही क्लियर हो जाएगा कि राइमिंग स्कीम पोएम की क्या होती है। तो फर्स्ट स्टैंजा जैसे हमने सामने लिया तो फर्स्ट स्टैंजा की पहली लाइन जो है उसका आखिरी शब्द जो है वो है बिगिनिंग्स, तो उसके सामने लिखिए ए। उसके बाद सेकंड लाइन जो है उसका सेकंड वर्ड जो है वो है मेक, उसके सामने लिखिए बी, क्योंकि बिगिनिंग्स और मेक उसका उच्चार यानी तुकंत सेम है क्या, नहीं। फिर थर्ड लाइन जो है उसका लास्ट वर्ड जो है वो क्या है, चूज। देखो बिगिनिंग्स, मेक, चूज तीनों भी तुकंत वाले शब्द नहीं हैं, इसलिए बिगिनिंग्स को हम लोगों ने ए दिया, मेक को बी दिया, चूज को सी दिया। और लास्ट लाइन का जो शब्द है वो क्या है, टेक है। तो टेक जो है वो किसके साथ तुकंत खाता है, वो मेक के साथ होता है, इसलिए उसको क्या, उसके सामने क्या लिखा जाएगा, जो मेक के सामने हम लोगों ने बी लिखा है वही किसके सामने लिखना है, आपको टेक के सामने लिखना है बी। तो इस प्रकार से इस पोएम की राइमिंग स्कीम क्या है, ए बी सी बी। इसके बाद का क्वेश्चन जो है आपका, तो वो क्वेश्चन है पोएटिक डिवाइसेस और फिगर ऑफ स्पीच। तो हम इसमें से परीक्षा के हिसाब से देखने की कोशिश करेंगे कि इसमें कौन सी फिगर ऑफ स्पीच आई है। बहुत ही सिंपल फिगर ऑफ स्पीच लिखने की कोशिश करेंगे। सेकंड लाइन जो है फर्स्ट स्टैंजा की, उसमें दिया है डिसीजन आई मस्ट मेक। ये जो लाइन है इसमें आई मस्ट मेक अ डिसीजन, ये प्रॉपर वर्ड ऑर्डर है,
ये सही तरीके की शब्द रचना है। लेकिन कविता में किस प्रकार से आया है? डिसीजन आई मस्ट मेक। इसमें जो वाक्य का कर्ता है वो 2 नंबर की पोजीशन है, जबकि वो कौन सी पोजीशन पे होना चाहिए था? नंबर 1 की पोजीशन पे होना चाहिए था। तो इस प्रकार से वर्ड ऑर्डर जो है वो गलत तरीके से लिखी गई है। जब इस प्रकार से वर्ड ऑर्डर गलत तरीके से लिखी जाती है तो वो फिगर ऑफ स्पीच कौन सी होती है? याद है ना? इन्वर्जन, जो हम लोगों ने 9वीं में ऑलरेडी सीखा है कि उसे क्या कहते हैं? इन्वर्जन। सेकंड जो है वो थर्ड स्टैंजा की फर्स्ट लाइन है, प्लीज ओपन माई आइज डियर लॉर्ड। इस लाइन में पोएट जो है वो डायरेक्टली किसके साथ बात कर रहा है? गॉड के साथ बात कर रहा है। जब भी हम किसी एब्स्ट्रैक्ट चीज़ के साथ बात करते, इंसान से नहीं, एब्स्ट्रैक्ट जो हमें दिखाई नहीं देती, ऐसी चीज़ों के साथ जब हम बात करते हैं तो वो फिगर ऑफ स्पीच होती है एपोस्ट्रोफ। आया समझ में? कौन सी फिगर ऑफ स्पीच होती है? एपोस्ट्रोफ। तो थर्ड स्टैंजा की फर्स्ट लाइन जो है वो है एपोस्ट्रोफ। अब नेक्स्ट फिगर ऑफ स्पीच जो बताने जा रही हूँ आपको वो है सेकंड स्टैंजा की थर्ड लाइन, ट्रैवल डाउन द डार्कन्ड रोड। ये फिगर ऑफ स्पीच है अलिट्रेशन। ये अलिट्रेशन क्यों है? तो एक ही साउंड जो है वो बार बार रिपीट हो रहा है। वो रिपीट किस लिए हो रहा है? कविता में एक अच्छे सा ताल तैयार हो, इसलिए वो रिपीट हुआ है। जैसे देखो, ट्रैवल डाउन द डार्कन्ड रोड, ड ड ड साउंड क्या हुआ है? रिपीट हुआ है। ट्रैवल डाउन द डार्कन्ड रोड, ड ड रिपीट होते हुए दिख रहा है। जब इस प्रकार से साउंड रिपीट होता है तो उसे हम क्या कहते हैं? अलिट्रेशन कहते हैं। और लास्ट जो है आई कैन चूज टू टेक द रोड ऑफ लाइफ, वो है मेटाफर। तो इस प्रकार से फिगर ऑफ स्पीच लिखने के बाद आपको कविता के हिसाब से नेक्स्ट जो एक्टिविटी जो है पोएटिक एप्रिसिएशन की, तो वो है थीम और द सेंट्रल आइडिया ऑफ द पोएम। तो थीम ऑफ द पोएम इज टीनेजर्स डायलेमा। डायलेमा मतलब ये करूँ या वो करूँ। टीनेजर्स डिलेमा अबाउट मेकिंग द राइट डिसीजन। मैं कौन सा डिसीजन लूँ, इसके लिए जो भी डिलेमा है उसके बारे में ये पोएम है। द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ चॉइस फॉल्स फुल्ली ऑन हिम और गॉड, ऑन हिम और हर। अ रॉन्ग डिसीजन में रूइन द होल लाइफ। अगर आपने ज़िंदगी में गलत डिसीजन लिया तो आपकी लाइफ क्या हो सकती है? टोटली डिस्ट्रॉय हो सकती है। सो द टीनेजर इन द पोएम रिकॉग्नाइजेज द नीड टू प्रे फॉर गॉड्स हेल्प एंड गाइडेंस। दिस इज द सेंट्रल थीम और आइडिया ऑफ द पोएम। एंड इस प्रकार से आपको टोटल लिखने के बाद आपको टोटल कितने मार्क्स मिलने वाले हैं? 5 मार्क्स मिलने हैं। तो आप लाइन टू लाइन जाइए। ये पोएम चाहे पोएटिक एप्रिसिएशन के लिए आए या फिर इस क्वेश्चन आंसर लिखने के लिए आए, आप इस प्रकार से आप पोएम की पढ़ाई करेंगे तो आप आराम से कोई भी सवाल सॉल्व कर सकते हैं। थैंक यू। इसके अलावा अगर आपको कोई डिफ़िकल्टी आती है, कोई प्रॉब्लम्स आते हैं तो आप पर्सनली मुझसे बात कर सकते हैं। आपके कोई भी सवालों का जवाब देने के लिए मैं कभी भी तैयार हूँ। थैंक यू।